Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 9 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, our today's topic is Newton's second law of motion. As in our previous lecture we have discussed the inertia and Newton's first law of motion. So Newton's first law of motion is also called law of inertia. So first law of motion deals with the situation when there is no net force acting on the object. And second law of motion deals with the situation when there is net force acting on the object. When net force is not equal to 0 means there is some value for the net force. In first law of motion, I've told you that if there is no net force acting on the object, and you have studied that if there is no net force acting on the object, then there will be no change in velocity of that object. And if there is no change in velocity of object, it means there will be no acceleration. No acceleration means zero acceleration. Means velocity remains constant. So these were the statements of the Newton's first law of motion. In Newton's second law of motion, we can say that if there is net force acting on the object, then it will produce acceleration in that object. Means acceleration will not be equal to 0. Means there will be change in velocity. So change in velocity will not be equal to 0. Velocity will not remains constant. Not equal to constant. So सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवर्स्ड हो जाएंगी. So this is the case when there is net force acting on the object. In that case we use Newton's second law of motion. So if there is no net force acting on the object, then we have to use Newton's first law of motion, and if there is net force acting on the object, then we have to use Newton's second law of motion. Then we have to apply Newton's second law of motion. Okay, so let's start our Newton's second law of motion, today's topic. Let's start from its statement. It states that whenever net force is applied on object, means it deals with the situation whenever there is net force is applied, when net force is not equal to 0. So whenever net force is applied on object, what it will do, net force क्या करेगी, it will produce acceleration in that object. अब just acceleration लिखा, statement में सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं. It will produce acceleration in that object, means it will change the velocity of that object. मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. सो वेन एवर नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ये नेट फोर्स क्या करेगी, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट. in which direction acceleration will be produced? So acceleration will be produced in the direction of the net force. In the direction of the net force, acceleration will be produced in the direction of the net force. जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसके ऊपर अभी कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, ये रुका हुआ है. मैं इसको रिलीज़ कर दूं तो नेट फोर्स ग्रेविटी की लगेगी, तो ये इसको डाउनवर्ड मूव करवाएगी. मींस फोर्स किधर लग रही है, डाउनवर्ड. तो वेलोसिटी में चेंज भी किधर आएगा, डाउनवर्ड. ठीक है, मींस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी. सो इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है. ये जो एक्सेलरेशन होता है ये मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल आएगा, तो इसके लिए हमने बताया कि दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी this acceleration is directly related to the magnitude of, directly proportional to the magnitude of net force, and inversely proportional to the mass of the object. तो दो चीज़ें हैं. this acceleration is directly proportional to the magnitude of force, यहाँ पे हमने लिख दिया acceleration is directly proportional to magnitude of force, and acceleration is inversely proportional to mass of object. So first of all we should know that what is meant by proportional. In your lower classes of mathematics, you have studied that what is meant by proportional, what is meant by directly proportional, inversely proportional. So word problem वाले questions आपके हुआ करते थे इसमें. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं what is meant by proportionality. यार proportionality का मतलब ये होता है कि if one quantity changes, let's suppose कितने भी टाइम चेंज हो, n टाइम्स चेंज हो, if one quantity changes n times, then due to this change in quantity other quantity also changes n times. Maybe it increase or decrease, कुछ भी हो सकता है, ये भी decrease increase कुछ भी हो सकता है. If one quantity changes 5 times and due to this change in quantity second quantity also changes 5 times, then इसका मतलब ये होगा कि both quantities are proportional to each other. Both quantities are proportional to each other. ठीक है, मीन्स पहले आप लेट्स सपोज जो है 1 आवर डेली स्टडी करते थे और उसकी वजह से आपके मार्क्स आए थे एक टेस्ट में, सिंपल समझा रहा हूँ, एक मार्क्स आए थे 10, ठीक है, आउट ऑफ 30. लेट्स सपोज अब आप 2 आवर्स स्टडी करने लग गए हैं
और आपके मार्क्स आते हैं 20। इट मीन्स कि आपने अगर टाइम को डबल किया तो यहाँ पे मार्क्स भी क्या हो गए, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए। टाइम 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो मार्क्स भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुए। ठीक है। और इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है, जिनमें आप एक चीज़ को ज़्यादा करें तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास आप लोग कुछ लोग इकट्ठे बैठे हैं, एक जगह पे गए, कैंपिंग की आपने, टूर पे गए, तो वहाँ पे आपके पास कुछ दिन की खुराक पड़ी हुई है। ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 10 डेज का राशन जो है, फूड जो है वो पड़ा हुआ है। सो अगर आप नंबर ऑफ पर्सनस जो है वो डबल हो जाएं, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो राशन जो है वो अगर 10 दिन का था तो वो 5 दिन का रह जाएगा। ठीक है। मतलब बंदे ज़्यादा होंगे तो फिर उनके लिए नंबर ऑफ डेज जिसमें वो सर्वाइव कर सकेंगे उतने फूड में वो कम हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, कुछ इन्वर्सली रिलेटेड। देखें यहाँ पे मैंने आपको जैसे समझाया कि जितने टाइम्स एक क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी अगर उतने टाइम्स चेंज हो रही है, इट मीन्स कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज होती है देन ये क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और एक क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करते हैं और उसके इंक्रीज से दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हो रही सेम रेट पे, एक क्वांटिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज करें तो दूसरी 10 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि ये क्या होंगे, इनवर्सली रिलेटेड होंगे टू ईच अदर। क्लियर है बात। तो एक चीज़ को अगर बढ़ाएं जितना टाइम्स दूसरी भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाए, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर एक चीज़ को आप बढ़ाएं और जितने टाइम्स और दूसरी उतने ही टाइम्स कम हो जाए, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि प्रोपोर्शनैलिटी के केस में चीज़ें प्रोपोर्शनल तो होती हैं बट उनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं होता। मीन्स के हमने ये कहा लेट्स सपोज x इज़ प्रोपोर्शनल टू y, इट मीन्स कि अगर x डबल हुआ तो y भी डबल हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप 1 आवर स्टडी कर रहे थे, आपने 10 मार्क्स लिए थे, 10 मार्क्स लिए थे, आप 2 आवर्स स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो आपके मार्क्स 20 हो गए। लेट्स सपोज इट मीन्स ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं। 2 टाइम्स एक चीज़ बढ़ी दूसरी भी बढ़ गई 2 टाइम्स। अब देखें कि यहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल तो नहीं हैं, ये इक्वल टू तो नहीं आ रहे, इक्वल टू तो नहीं लिख सकते इनको। इनको इक्वल लिखने के लिए एक और काम करना पड़ेगा कि राइट साइड पे आपको कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। अब देखें लेफ्ट साइड पे वैल्यू कम है, राइट पे ज़्यादा है, तो फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 10 को 1 बनाना है तो 1/10 लिख देते हैं, तो 10 1 इज 10 कैंसिल होकर इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1, तो इधर भी फिर वही कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा 1/10। ठीक है। ये हर रिलेशन में इस केस में अब कांस्टेंट है, जो सिंगल आप रिलेशन यूज़ कर रहे होंगे उसकी हर वैल्यूज़ के लिए सेम रहेगा। तो ये 2 = 2, 1 = 1 मीन्स के जो आपके पास प्रोपोर्शनल चीज़ें होती हैं जब आप उनको इज इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेट करते हैं, बराबर कर रहे होते हैं, तो आपको राइट साइड पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि वो दोनों इक्वल हो जाएं। अगर ऑलरेडी इक्वल हैं देन आप जस्ट 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ये कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। What is meant by constant of proportionality? It is that constant which is used to convert proportionality symbol into equality symbol. Means दो quantities के बीच में जो proportionality की relation है उसको is equal to में convert करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? You have to multiply constant with the right hand side. अब ये जो राइट और लेफ्ट साइड पे दो वेरिएबल्स होते हैं इनको भी आपने ध्यान में रखना है कि ये जो आपके पास राइट साइड पे वेरिएबल है इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल जो स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड पे आता है इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन आप इनको ऐसा लिखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट साइड पे लिखते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? लेट आप देखते हैं कि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो आप अपनी ड्रेसिंग भी आपको चेंज करनी पड़ती है। गर्मियों में आप जो है कोट और ऊपर शॉल वगैरह वो नहीं रखते हैं, सर्दियों में आप कोट और ये चीज़ें स्वेटर्स ये पहनते हैं। तो ड्रेसिंग आपकी वेदर पे डिपेंड करती है। ठीक है। बट वेदर जो है वो आपकी ड्रेसिंग पे डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स ड्रेसिंग जो है ये तो डिपेंडेंट हो गया ड्रेसिंग और वेदर के केस में, बट वेदर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेसिंग। अगर आप गर्मी में अपने स्वेटर्स 2-3 पहन लें, ऊपर कोट पहन लें, ऊपर कंबल ओढ़ लें और हीटर के सामने जाके बैठ जाएं तो ऐसा नहीं है कि बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि आपकी ड्रेसिंग को चेंज करने से वेदर नहीं चेंज हो रहा। सो वेदर इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट वेदर चेंज हुआ तो ड्रेसिंग आपको खुद ब खुद चेंज करनी पड़ेगी। इट मीन्स ड्रेसिंग इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनमें से एक इंडिपेंडेंट तो एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट जो होता है, डिपेंडेंट को आप लेफ्ट पे लेंगे और इंडिपेंडेंट को राइट साइड पे लेंगे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कन्वेंशनली रिवाज ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ राइट साइड पे आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके दोनों चीज़ों को लेफ्ट और राइट साइड को
इक्वल बनाते हैं और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो प्रोपोर्शनल का मतलब जितने टाइम्स एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी भी उतने टाइम्स ही चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जितने टाइम्स एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी भी उतने टाइम्स इंक्रीज हो, और अगर जितने टाइम्स एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी भी उतने टाइम्स डिक्रीज हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होगा जितने टाइम्स एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, उलट है ना, अगर एक डिक्रीज हो रही है दूसरी उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो जाएगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट, हमने ये कहा था व्हेनेवर देयर विल बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट नेट फोर्स एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। और एक्सेलरेशन जो है उसकी मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगी, तो बोला मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मीन्स वेलोसिटी में चेंज तेज़ी से आएगा, सिंपल है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी में चेंज तेज़ी से आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा पत्थर है, उसके ऊपर आप थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी स्लोली चेंज होगी, अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उसी पत्थर पर तो उसकी वेलोसिटी तेज़ी से चेंज होगी, मीन्स एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगी तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ये बात हमने यहाँ लिखी। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स नेट जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर दें आप सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें एक्सेलरेशन भी 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। डायरेक्टली मीन्स इंक्रीज पे इंक्रीज, डिक्रीज पे डिक्रीज। अगर नेट फोर्स 5 टाइम डिक्रीज कर दें तो नेट एक्सेलरेशन जो उसमें था वो भी 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आपने पहले 1 किलो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई थी, अब उतनी फोर्स आप 2 किलो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएं तो 2 किलो का ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी उतनी तेजी से चेंज नहीं होगी एज कम्पेयर टू 1 kg मास। मतलब ये हुआ कि अगर आप मास को बढ़ाएंगे फोर्स सेम अप्लाई करके तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा रिलेशन नंबर 1 है। दिस इज नॉट इक्वेशन, इज इक्वल टू नहीं है इसमें, जिसमें इज इक्वल टू हो वो इक्वेशन होता है। दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब हम ये करेंगे, कंबाइन करेंगे इन दोनों रिलेशंस को। सो कंबाइनिंग आपने लिखना है, बाय कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2 वी कैन गेट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ बाय एम। ठीक है, मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। इनवर्सली का मतलब सिर्फ ये होता है, बोला कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी उतने टाइम्स डिक्रीज होगी। और लिखने में इसको कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m लिखा है, ऐसे लिखा था एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो ये 1/m को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m बोलते हैं, मीन्स उलट रिलेशन है m के साथ। अब ऐसे नहीं पढ़ना एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m के साथ उलट रिलेशन है, 1/m के साथ तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से इसको रेज करें, सो ये हमारे पास जो वैल्यू बन गई, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू F/m। अब देखें प्रोपोर्शनैलिटी की सिंबल आ गई है, यहाँ से इसको हमने इज इक्वल टू की सिंबल में कन्वर्ट करना है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जब इज इक्वल टू की सिंबल में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई right hand side, means we have to multiply independent variable with this constant value and this constant is called constant of proportionality. So constant into F/m। यहाँ पे जो constant है इसको हम k से लिखते हैं, इसकी जगह आपने k लिख देना है, देन उस k को रिप्लेस कर देना है बाय 1 क्योंकि इसकी वैल्यू SI यूनिट्स में 1 है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k इंटू F/m, k इंटू F/m and value of k is 1, so acceleration will be equal to 1 into F/m को जस्ट हम F/m लिख देंगे बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई होने से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। अब आप देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में m लिखा है, अगर आप इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बन जाएगी, f इज इक्वल टू, मैं इसको किसी और कलर में लिख देता हूँ, ये इक्वेशन बन जाएगी इसमें लिखते हैं f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, सो अब देखें तो ये आपको सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म मिल गई, f इज इक्वल टू एम ए। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, mathematical form of Newton's second law of motion is F. We have derived it, F is equal to ma. So this is mathematical form of Newton's second law of motion.
कैसे मिली ये फॉर्म? तो बोला एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं डेरिवेशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। फिर हमने कहा एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, यानी प्रोपोर्शनल 1/m है। फिर दोनों को कंबाइन किया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू f ऊपर और m नीचे लिख दिया, f इंटू 1/m को f/m बोल दिया। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू f/m हो गया। अब ये जो कांस्टेंट इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम k से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f/m हो जाएगा। m डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर दें, f इज इक्वल टू ma। सो दिस इज mathematical form of the Newton's second law of motion, that is F is equal to ma। F is equal to ma, this is mathematical form of Newton's second law of motion। ठीक है, अब यहाँ से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं अगेन, कि फोर्स जो है वो ऐसे डिफाइन, हमने कहा F इज इक्वल टू क्या मिल गया, ma। इसका मतलब फोर्स जो है इट इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। तो बताएं आपने कितनी फोर्स लगाई होगी, तो हम कहेंगे हमने m मल्टीप्लाई बाय a का जो आंसर आता है इतनी फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई होगी। सो if mass of object and acceleration of object both are known, then we can find force by using the Newton's second law of motion. And if any two of these three quantities are given, then we can find the third quantity by using this Newton's second law of motion. If f and m are given, then we can find a. If f and a are given, then we can find m. If m and a are given, then we can find f. So इन तीनों में से दो गिवन हो तो तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। फोर्स को यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से आप देखें अगर, तो हम फोर्स की जो यूनिट है उसको भी डिफाइन कर लेंगे सिंपली। लेट सपोज आपके पास पहले ये देख लें कि लेट आपके पास मैस जो है ऑब्जेक्ट का वो 5 kg है। लेट सपोज मैस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ 5 kg, और उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो बताएं उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, हम कहेंगे F इज इक्वल टू ma होता है। तो बताएं m कितना है, 5 है, a कितना है, a है 1 है, 5 किलोग्राम इंटू 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो है उसको हमने न्यूटन का नेम दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 5 न्यूटन। अब ज़रा न्यूटन को पहले डिफाइन कर लें क्योंकि ये इशू बनाता है थोड़ा सा। तो फोर्स की यूनिट क्या है, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम यही रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे, एज वी नो दैट F इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर मैस भी 1 हो जाए और एक्सेलरेशन, याद रखना जब भी किसी चीज़ की यूनिट को डिफाइन करने लगेंगे आप, तो उसके लिए आपको उसके आंसर्स में जो भी चीज़ें आ रही होंगी, जो भी क्वांटिटीज़ आ रही होंगी, आपको उन क्वांटिटीज़ की वैल्यू को 1 पुट कर देना होगा, तो बहुत सिंपल से ये डिफाइन हो जाएगी क्वांटिटी। तो हम कहते हैं कि इफ़ मैस इज़ 1 kg, if mass is 1 kg and if acceleration is 1 meters per second square, means वो वाली फोर्स जो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। उस फोर्स को हम 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर यानी 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। बिकॉज किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो है उसका शॉर्टकट नेम जो है वो न्यूटन है। किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो है ये फोर्स की यूनिट बनती है ना। देखिए मैस की यूनिट किलोग्राम है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को जब मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों यूनिट्स को, तो आपको यूनिट ऑफ फोर्स मिल जाएगी। इट मीन्स यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बट सिस्टम इंटरनेशनल में इसका शॉर्टकट नेम जो रखा हुआ है, शॉर्टकट नेम वो क्या है, वो है न्यूटन। अब साइंटिस्ट का नेम या किसी भी बंदे का नेम हो, पर्सन का नेम हो, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो साइंटिस्ट, आफ्टर द साइंटिस्ट जो यूनिट का नेम होगा, यूनिट का नेम जो साइंटिस्ट के नेम पे होगा, उसे फुल जब लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखें ताकि कंफर्म हो जाए ये यूनिट है, साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही। अच्छा, तो किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट बन गई, इट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसको शॉर्टकट नेम दे दिया गया आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, न्यूटन। अब इसकी सिंबल क्या है, सिंबल जस्ट कैपिटल N है, और लिखेंगे तो फुल, लिखेंगे तो स्मॉल n से न्यूटन लिख देंगे। ठीक है, दिस इज न्यूटन। 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है, तो बोलेंगे दैट फोर्स विल बी 1 न्यूटन। डेफिनेशन आप नोट करें नोटबुक्स के ऊपर। दैट फोर्स विल बी 1 न्यूटन विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ acceleration of 1 meters per second square, which produces acceleration of 1 meters per second square in object of mass 1 kg, of mass 1 kg. So that force, शुरू में लिखना है
that force will be 1 Newton, which produces acceleration of 1 meters per second square in an object of mass 1 kg. तो 1 kg into 1 meters per second square equals to 1 into 1 kg meters per second square, and kg meters per second square is the न्यूटन, इसको शॉर्टकट में न्यूटन बोलते हैं. सो 1 न्यूटन फोर्स कितनी है, बोलेंगे वो वाली फोर्स जो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे. मीन्स 1 किलो ऑब्जेक्ट हो और उसके ऊपर आप फोर्स लगाएं और उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आए वो हर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड चेंज आए. अगर पहले उसकी वेलोसिटी 1 थी, 1 सेकंड के बाद 2 मीटर्स पर सेकंड हो जाए, फिर 1 सेकंड के बाद 3 हो जाए, फिर 1 सेकंड के बाद 4 हो जाए, या इसी तरह पहले 5 थी, 1 सेकंड के बाद 4 हो जाए, 3 हो जाए, या 5 के बाद 6 7 हो जाए, या फिर पहले 10 मीटर्स पर सेकंड है तो 1 सेकंड के बाद 11 मीटर्स पर सेकंड हो जाए. 1 मीटर्स पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड में चेंज आए तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. सो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो उतनी फोर्स को जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है उसको 1 न्यूटन बोलेंगे. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. सिंपल सा है, 1 न्यूटन को आप डिफाइन कर सकते हैं. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ये एक्सेलरेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स होगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg. फिक्स बता देते हैं 5 kg मास है. तो kg इज द यूनिट ऑफ मास, ये वेट की यूनिट नहीं होती. ये मिसकंसेप्शन, आपसे कोई वेट पूछते आप नॉर्मली मैस बताते होते हैं, वो सेपरेट इशू उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे. क्योंकि एक तो ये कि वो वेट नहीं होता है, वो मैस होता है, ठीक है. दूसरा कंपैरिजन में सेम वैल्यूज बनती भी हैं, बट केजी जो है इट इज़ यूनिट ऑफ मैस. 5 kg ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाई, ठीक है. उस फोर्स लेट सपोज आपने एफ फोर्स लगी, मैं फोर्स भी बताता हूँ. लेट आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो पता है इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, एफ इज इक्वल टू एम ए से फाइंड करते हैं. एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैस को ला के इधर क्या करते हैं, डिवाइड कर दें. सो फोर्स के साथ मैस को डिवाइड करें, यू विल गेट एक्सेलरेशन. फोर्स कितनी है 5, मैस कितना, सॉरी फोर्स 5 नहीं है, फोर्स कितनी है 1, मैस कितना है 5. सो फोर्स इज 1, मैस इज 5, 1/5 आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. अब देखें, जब आप एक और केस लें जिसमें आपने मैस बड़ा, ये फोर्स ज़्यादा कर लेते हैं, यही ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन के बजाय आपने अप्लाई कर दी लेट्स सपोज 2 न्यूटन फोर्स, या वैसे कहते हैं ज़रा और बढ़ा देते हैं, ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, 5 न्यूटन फोर्स. अब आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन क्या था, फोर्स बाय मैस. तो एक्सेलरेशन था, फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, मैस कितना है 5 kg. तो 5 से कट के 1 आ जाएगा. पहले 1/5 था, बहुत छोटी वैल्यू थी, एक चीज़ के 5 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा था. अब फुल वो वैल्यू आपको मिल गई. इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया. क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपने फोर्स को ज़्यादा किया. तो जब आप फोर्स को 5 टाइम्स आपने ज़्यादा किया तो एक्सेलरेशन भी 5 टाइम्स ज़्यादा हुआ, क्योंकि 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखें कि एक्सेलरेशन क्यों बढ़ा, जब आपने फोर्स को बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन बढ़ गया. एक और चीज़ यहाँ पे देख लें, फोर्स की एक और यूनिट, एक्सेलरेशन की एक और यूनिट आप देख लें. एक्सेलरेशन की एक यूनिट आपने देखी किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है. सिंपली आपने कहा ए इज इक्वल टू क्या है, एफ डिवाइडेड बाय एम है. फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, मैस की यूनिट क्या होती है केजी. सो न्यूटन पर केजी कहीं पे लिखा हो तो ये भी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होगी, ठीक है. अनदर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो न्यूटन पर केजी. ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है न्यूटन इंटू के जी इनवर्स ऊपर जाके, ठीक है. सो ये भी क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट बनती है. इसके अलावा और तो बहुत सी फीट पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी, वो एफपीएस वगैरह में चले जाएं, ठीक है. सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी सीजीएस में, तो उनको आप देख लेंगे. सो न्यूटन पर केजी भी इसकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है. हमने फोर्स का रिलेशन देखा, अब मैस का रिलेशन देखते हैं. लेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जो है वो लेट सपोज मैस जो है वो 5 kg है. उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई 5 न्यूटन. तो पता है उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम कहेंगे F इज इक्वल टू एम ए एंड ए इज इक्वल टू एफ बाई एम. एफ कितना है 5 न्यूटन, एम कितना है 5 kg. 5 से कट जाएगा, आंसर आएगा 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट लिख देंगे, ठीक है. अब आपको पता है न्यूटन जो है वो न्यूटन, अगर मैं इसको लिखूँ, इसकी यूनिट लिखूँ यहाँ पे, तो ये बनती है, यूनिट बनती है
यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे केजी है, बट आपको पता है न्यूटन क्या है? न्यूटन इज किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसमें से डिनोमिनेटर में क्या है? किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम से कट के आपको जस्ट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा, जो नॉर्मली आप यूनिट लिखते हैं एक्सेलरेशन की। तो बोला अगर 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 है। अब अगर आप इसके मास को बढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा रख लेते हैं जिसका मास जो है वो 10 kg हो, उतनी ही फोर्स लगाएं, तो देखते हैं मास का क्या इफेक्ट हो। पहले हमने देखा फोर्स को जितने टाइम्स बढ़ाया तो एक्सेलरेशन उतने टाइम्स बढ़ा। अब मास 10 हो गया, फोर्स हम उतनी रखते हैं 5 न्यूटन। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो एक्सेलरेशन है बराबर एफ बाई एम के, acceleration is equal to f by m. Here f is 5 and m is 10. तो अब 5 1 is 5, 5 2 is 10, 1/2, 1/2 means half। पहले एक्सेलरेशन 1 था, अब कितना हो गया? हाफ, मीन्स एक्सेलरेशन 2 टाइम्स कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने मैस को 2 टाइम्स बढ़ा दिया। सो मैस को इंक्रीज करने से पहले हम बोलते हैं फोर्स की बात करते हैं। सो हमने ये जो डिस्कस किया इससे ये पता चला कि फोर्स को इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है उतने ही टाइम्स। मैस को इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड वाइस वर्सा, इसको उलट भी बोल सकते हैं कि फोर्स को डिक्रीज करने से भी एक्सेलरेशन डिक्रीज ही होगा और मैस को डिक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैस के साथ इनवर्स रिलेशन ये था, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, या बोलो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। और यहाँ पे क्या था? ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स बढ़ाएं, एक्सेलरेशन बढ़ेगा उतने टाइम्स, मैस बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन उतने टाइम कम होगा। लेकिन जब फोर्स बढ़ा रहे होंगे तो मैस को कांस्टेंट रखना है, जब मैस बढ़ा रहे होंगे तो फोर्स को कांस्टेंट रखना है, नहीं तो रिजल्ट थोड़े चेंज हो सकते हैं। सो दिस वाज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज व्हेनेवर नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट देयर विल बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। सो इफ देयर इज नेट फोर्स देन देयर विल बी एक्सेलरेशन, मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, सिंपल सा था। You have to revise this topic and also you should write this topic on your neat notebooks. If you have any problem related to this topic you may ask in the comment section, but isko try to understand this topic. These are very important topics in physics, these are very important in Newtonian mechanics, in classical mechanics जो आपकी पूरी बुक है इसमें ये बहुत important है, Newton's laws of motion. Okay, thank you, goodbye.